Now let's study the sensitivity of the tangent galvanometer. Okay. So what do you mean by sensitivity? Sensitivity is nothing but d theta by di. That is change in deflection per unit current is called as sensitivity. So for that, what should be done? We know that in tangent galvanometer, I is equal to K tan theta. Okay. We know this formula for tangent galvanometer. I is equal to K tan theta, where K is called as reduction factor. So current is directly proportional to tangent of the deflection. Theta is nothing but deflection of the coil. So taking derivative of both sides with respect to theta, we get di by d theta. K is a constant which is as it is. Tan theta का derivative आ जाएगा sec square theta. Okay. Now we get di by d theta. Now taking reciprocal of both the sides, what will happen? D theta by di is equal to 1 upon K sec square theta. Okay. Now d theta by di is nothing but current sensitivity. So sensitivity of tangent galvanometer is equal to 1 upon K sec square theta. So this is the formula for sensitivity of the tangent galvanometer. Or in other words, we can also write SI is equal to cos square theta divided by K, because 1 upon sec theta is nothing but cos theta. So cos square theta divided by K. Now current sensitivity is maximum when cos theta is equal to 1. Okay. When cos square theta is equal to 1, current sensitivity of tangent galvanometer maximum. Okay. And that is maximum current sensitivity will be equal to 1 by K. Okay. So this is the maximum current sensitivity of the tangent galvanometer. And when it is going to be maximum, that is cos square theta is should be equal to 1 ना. So cos square theta 1 कब आता है? 0 डिग्री को आता है. So for that, therefore theta कितना चाहिए? Theta should be equal to 0. So that is the correct answer. So current sensitivity maximum कब रहते हैं? जब deflection 0 रहता है तब. Okay, current sensitivity is maximum when deflection is 0. Okay, so that is a very important thing to be remembered. Current sensitivity of tangent galvanometer is maximum when theta is equal to 0. मतलब initially current sensitivity ज्यादा रहती है, जैसा एंगल बढ़ता जाता है उसकी current sensitivity कम 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 होती रहती है. So tangent galvanometer में sensitivity depends on the deflection and it changes with respect to deflection. Initially current sensitivity बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब deflection जब 0 रहेगा तब वो थोड़ा सा भी करंट डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन डिफ्लेक्शन जैसे बढ़ जाता है वैसे करंट सेंसिटिविटी उसकी क्या होती है? कम 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 होती जाती है. मतलब उसी अमाउंट का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए बाद में थोड़ा सा ज्यादा करंट उसमें फ्लो करना पड़ेगा. ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ accuracy of tangent galvanometer. Okay, next part is the accuracy of the tangent galvanometer. So accuracy is generally measured in case of galvanometer. Accuracy is generally measured in relative error, that is di by I. Okay, so accuracy is measured in terms of relative error. Relative error आपको पता है, that is change in value divided, मतलब error divided by true value. Error divided by true value उसको क्या बोलते हैं? हम error बोलते हैं. So change in current divided by total current, इसको हम क्या बोलेंगे? relative error. And that relative error का जो magnitude है
उस पर हम क्या डिसाइड करेंगे, उसका एक्यूरेसी डिसाइड करेंगे, जिसका मतलब एक्यूरेसी का इधर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्यूरेसी इज रिटन बाय द फॉर्मूला di/i. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी. बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, अगर di/i ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, बताओ मुझे. If di/i is more, accuracy more or less, that is the thing you should remember. Tell me, di/i अगर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा. लेस सर. लेस, करेक्ट. इधर फॉर्मूला है di/i, लेकिन वैसा नहीं लेना है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि di/i एक्चुअली क्या है, रिलेटिव एरर है, और जब रिलेटिव एरर कम रहता है तो एक्यूरेसी ज्यादा रहता है. सो डोंट गो डायरेक्टली ऑन द फॉर्मूला. ये इधर ही ओनली ऐसा याद में रखना है. ओके. सो जब di/i एक्यूरेसी का, अभी देखिए ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, इन गैल्वानोमीटर accuracy is given by formula di/i. If di/i is more, it means that accuracy is less. Okay. So di/i का वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा उसका एक्यूरेसी कितना है. di/i अगर ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग उसका एक्यूरेसी कम रहेगा. ओके. सो डोंट गो ऑन द फॉर्मूला, कंसिडर द मीनिंग. उसका मीनिंग देखिए, क्योंकि di/i मतलब रिलेटिव एरर है, एक्चुअली वो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी का वैल्यू आपको लिखने के लिए di/i ही लिखना पड़ेगा, रिलेटिव एरर ही लिखना पड़ेगा. ओके. सो नाउ यू कैन सी, वी नो दैट i का फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू k tan थीटा, एंड di का फॉर्मूला क्या है, di वी हैव डिराइव्ड दैट फॉर्मूला di. इधर आप देख सकते हैं di is equal to k sec square theta into d theta. फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर हमने i का डेरिवेटिव लिया, i is equal to k tan theta का डेरिवेटिव लिया, तो हमें di का फॉर्मूला मिलेगा. di का फॉर्मूला क्या है, k sec square theta into d theta. k sec square theta into d theta. So therefore accuracy is equal to di/i, that is equal to, डिवीजन करने के बाद k निकल जाएगा, that is sec square theta d theta divided by tan theta. Okay. So accuracy is equal to, अभी d थीटा वैसे ही न्यूमरेटर पे रखता हूं. अभी sec square theta मतलब क्या हो जाएगा, 1 cos square theta, मतलब डिनोमिनेटर को cos square theta आ जाएगा, एंड tan theta is sin theta divided by cos theta. So 1 cos theta get cancel, so therefore it is d theta divided by sin theta cos theta रहेगा. अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 d theta डिवाइडेड बाय 2 sin theta cos theta. अभी 2 sin theta cos theta क्या रहता है, sin 2 theta. हाँ, sin 2 theta रहता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी का फॉर्मूला है 2d theta अपॉन sin 2 theta. अभी बताइए मुझे एक्यूरेसी ज्यादा कब रहेगा, sin 2 theta क्या होना चाहिए, मिनिमम. हाँ, sin 2 theta मिनिमम होना चाहिए, तब एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा. ओके. एक्यूरेसी ज्यादा होने के लिए sin 2 थीटा मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर. ओके. फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी,
साइन टू थीटा शुड बी, क्या लिखूं मैं इधर, मैक्सिमम। ओके, हे कुणाच्या लक्षात आलं काय बघा व्यवस्थित, कारण ही खूप व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घेण्यासारखी गोष्ट आहे. ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी साइन टू थीटाची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे. कारण हे बघा 2d थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा, हे काय काढलंय आपण, रिलेटिव्ह एररचा ऍक्च्युअली हा फॉर्म्युला आहे. ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी रिलेटिव्ह एरर कमी यायला पाहिजे, म्हणजे याची व्हॅल्यू कमी यायला पाहिजे, याची व्हॅल्यू कमी यायला पाहिजे, म्हणजे साइन टू थीटा मॅक्सिमम यायला पाहिजे. हे लक्षात येतंय का बघा, ही महत्वाची गोष्ट आहे. कारण पुन्हा एकदा मगाशी जो विषय सांगितला तोच विषय येत आहे. ओके, सो ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी DI बाय I काय यायला पाहिजे, ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी DI बाय I कमी यायला पाहिजे, म्हणजेच ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी ही टर्म काय यायला पाहिजे, कमी यायला पाहिजे. 2d थीटा अपॉन साइन टू थीटा कमी यायला पाहिजे ॲक्युरसी जास्त येण्यासाठी. अँड देअरफॉर साइन, ही टर्म कमी येण्यासाठी साइन टू थीटा मॅक्सिमम पाहिजे. अँड साइन टू थीटा इज मॅक्सिमम, दॅट इज इक्वल टू 1. सो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू काय असलं पाहिजे, 90 डिग्री असलं पाहिजे. अँड थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री असलं पाहिजे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय वेळेला असा क्वेश्चन असतो, when the accuracy of tangent galvanometer is maximum. Okay, so correct answer is at 45 degree. So accuracy of tangent galvanometer is maximum at 45 degree. Okay, so remember these two things, sensitivity is maximum at 0 degree and accuracy is maximum at 45 degree related to the tangent galvanometer. Okay, कुछ डाउट है तो बोलिए, इसमें कुछ डाउट है क्या? Sensitivity is maximum at 0 degree and accuracy is maximum at 45 degree. So generally this accuracy का पार्ट या फिर सेंसिटिविटी का पार्ट आपको एडवांस में मोस्टली रहेगा, एडवांस में, नीट में नहीं रहेगा ये पार्ट, या फिर मेंस में भी नहीं रहेगा. ओके, मेंस में, लेकिन ये सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए. सेंटेंसेस, सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंड एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री. मतलब कोई भी मेंस का बुक आपने लिया या फिर नीट का बुक लिया तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगा, एक्यूरेसी का पार्ट एडवांस के बुक में है, लेकिन स्टेट बोर्ड में टेंजेंट गैल्वानोमीटर ही नहीं है.